بہن اور بھائیوں، میں آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج کلیسائی اعتبار سے ہمارا ایسٹر کا 5واں اتوار ہے، اور یہ اتوار خاص طور پہ اس لیے بھی بڑا اہم ہے کہ اس میں اس میں دو چیزیں ہیں کہ خداوند ایک طرف ہمیں بہت بڑی تسلی دیتا ہے، واقعی خوشخبری دیتا ہے، اور دوسری طرف بتاتا ہے کہ میں راہ، حق اور زندگی ہوں۔ تو اسی پہ آج ہم بات کریں گے۔ آج کی انجیل ہے جس پہ ہم سوچ بچار کریں گے، مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 14واں باب، پہلی آیت سے لے کے 12ویں آیت تک۔ یہ بہت ہی مشہور اور بہت ہی استعمال ہونے والا یہ حوالہ ہے۔ اس میں یوں لکھا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا کہ میں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جاتا ہوں، اور جب میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تو پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم جانتے ہو، اور وہاں کی راہ تم جانتے ہو۔ توما نے اس سے کہا کہ اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، تو ہم وہ راہ کیوں کر جانے؟ یسوع نے ان سے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم مجھے جانتے ہو تو میرے باپ کو بھی جانتے ہو، اور اب سے تم اسے جانو گے اور تم نے اسے دیکھا ہے۔ فیلبوس نے اس سے کہا ہے، خداوند ہمیں باپ کو ہمیں دکھا تو ہمارے لیے بس ہے۔ یسوع نے اس سے کہا ہے، فیلبوس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ پھر تو کس طرح کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تجھے یقین نہیں کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ جو مجھ میں رہتا ہے وہی اپنے کام انجام دیتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، نہیں تو کاموں ہی کے سبب سے یقین کرو۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ جیسے میں نے شروع میں کہا اس تلاوت کے بارے میں کہ اکثر جب ہم کسی صدمے سے دوچار ہوتے ہیں، جب کوئی بہت بڑا دکھ ہمیں آ گھیرتا ہے، اور خاص طور پہ یہ حصہ جو ہے یہ تلاوت کا، یہ ہم عام طور پہ جنازوں کے وقت جنازے پہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ اس مردے کے لیے ہم پڑھتے ہیں، یہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ان لواحقین کے لیے، ان لوگوں کے لیے، ان دوستوں کے لیے جو وہاں جمع ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے ہوتا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے۔ دیکھیں، جو یوحنا کی انجیل ہے نا، اس کا مجھے سب سے خوبصورت حصہ یہ لگتا ہے کہ 13ویں باب سے لے کے 17ویں باب تک یہ جو 4 باب ہیں، ان میں 4 ہیں کہ 5 ہیں، 13 14 15 16 17، 5 باب۔ یہ 5 باب ایسے ہیں کہ اس میں صرف یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ، باقی انجیلوں میں بہت کم ہمیں ایسا موقع ملتا ہے جب یسوع اتنی لمبی گفتگو جو ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ کرتا ہے، اور یہ شروع ہوتی ہے جب آخری فسح وہ کھاتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں مجھے جو ایک اور بڑی خوبصورت بات لگی ہے، اور میں اس پہ بڑا سوچتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ سوچیں۔ جب یسوع ان سے گفتگو کرتا ہے آخری فسح پہ، ان کے پاؤں دھوتا ہے، اس سے وہ پاک یوخرست
का साक्रामेंट उसको मुकर्रर करता है। फिर हुक्म देता है कि तुम एक-दूसरे को प्यार करो। फिर जिस तरह वो बताता है कि मैं रोटी तोड़ रहा हूँ, अपना खून दे रहा हूँ, तुम मेरी याद में यही किया करो। और सबसे ज़्यादा ज़ोर उसने प्यार पे दिया है। तो यूहन्ना भी तो वहाँ था, जिसने ये सब कुछ लिखा। मैं ये सोचता हूँ कि जब यीशु बोल रहा था और वो सुन रहा था, वो क्या महसूस कर रहा था? उसने अपने एहसासात इसमें नहीं लिखे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप और मैं, हम ये 13 से लेके 17 बाब कभी वक़्त मिले तो हम बैठ के इनको पढ़ें, और जब हम इनको पढ़ें, तो हम सोचें कि यूहन्ना रसूल क्या सोच रहा था? उसको क्या महसूस हो रहा था जब यीशु ये सब बातें कर रहा था? देखिए, मैं तो ये 14वें बाब की जो ये हमने अभी पढ़ी है जो अ, तफ़सील, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हें खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ। ये इतनी ज़ोरदार बात है, तुम्हारा दिल ना घबराए। वो जब यीशु अपनी सारी बातें बता रहा था, जब उसने पाँव धोए और उसने सब, वो जो शागिर्द है यहूदा इस्करियोती, वो उसको छोड़ के चला जाता है, तो उसका, यीशु का दिल भारी होता है, दूसरों का भी दिल भारी होता है। फिर वो बताता है कि क्या होने वाला है उसके साथ। फिर वो गेतसमनी के बाग में जाते हैं और वो सब कुछ जो उसके बाद होता है और मसलूब होने तक, तो उनका दिल तो वाक़ई बहुत ही गमगीन और गमज़दा होगा। तो यीशु उनसे कहता है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान लाओ। यहीं बात खत्म नहीं होती कि ईमान ले आओ। देखो, हम ईमान को बड़ा, हम सब कहते हैं कि ईमान ही सब कुछ है, और वाक़ई सब कुछ है। लेकिन ईमान जो है वो, उसको अ, असल में हम खुद अपने अंदर जनरेट करते हैं। खुदा की मदद माँगते हैं और खुद उसको अपने अंदर हम पैदा करते हैं। ये कहीं आसमान से कोई चीज़ हम पे नहीं गिरती। अक्सर कहते हैं कि खुदा का रूह जब तक ना हो, ईमान नहीं। नहीं, आपकी नीयत ज़रूर होनी चाहिए। जब आप नियत करेंगे, जब आप माँगेंगे ईमान, जब आप ईमान चाहेंगे, तो ईमान मिलेगा। जब उसकी नियत नहीं करेंगे, तो रूह आपके करीब नहीं आएगा। कितनी ही आप दुआ करें, लेकिन जब तक उस ईमान की आप नियत नहीं करते, वो आपका दिल जब उसके लिए तड़पता नहीं कि मुझे खुदा ईमान दे, उस वक़्त तक नहीं मिलता। उसने कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर ईमान लाओ, इसलिए कि वो 3 साल से उनके साथ था और उनको अपने सारी बातें उसने उनके साथ की, मोहब्बत की, खिदमत की, और जाने कोई चीज़ ऐसी नहीं, और फिर बेशुमार मुझसे उसने किए। ये सब कुछ करने के बाद भी बात यहाँ पे आई कि उनका दिल गमगीन हुआ, और देखें फिर एक वक़्त आता है गेतसमनी बाग, सब भाग जाते हैं, छोड़-छाड़ के। पतरस भी उसका इनकार कर देता है। कहाँ कि वो कह रहा था कि मैं तेरे लिए अपनी जान दूँगा, और दूसरे शागिर्द सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे वो करेंगे कि वो भाग जाएँगे। देखें, ये बड़ी एक, यीशु को इसका भी पता था, और मैं समझता हूँ कि यीशु को इसका दुःख भी होगा, और इसलिए वो चाहता था कि, देखें, वो क्यों बार-बार कहता है कि तुम एक-दूसरे से प्यार करो। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, और सबसे बड़ा हुक्म देता हूँ कि एक-दूसरे से प्यार करो। और ये जो प्यार है, यही ताकत देता है। जब प्यार होता है तो आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी लड़ जाते हैं, उसके सामने खड़े हो जाते हैं। अगर प्यार नहीं है, अब देखिए, प्यार आप कीजिए, अगर मैं तो अकेला हूँ इस दुनिया में, आप कभी अकेले नहीं हैं। खुदा हर वक़्त आपके साथ है। आपका खुदा के साथ रिश्ता प्यार का रिश्ता होना चाहिए। अगर वो रिश्ता नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी, फिर हम अपने आप को मसीही क्यों कहते हैं? इसीलिए यीशु ने इस ईमान को मज़ीद ताकतवर करने के लिए, मज़ीद मज़बूत करने के लिए, कि तुम्हारा दिल ना घबराए, उसने कहा कि मैं राह हूँ, हक़ हूँ और ज़िंदगी हूँ। ये मेरा बड़ा पसंदीदा, और बड़ा मुझे इस पे, मैं इस पे मर जाता हूँ। ये इतना खूबसूरत, ये जो आयत है उसकी, कि मैं राह, हक़ और ज़िंदगी।
इसमें मैं हमेशा सलीब को देखता हूँ। राह यीशु राह है। तो राह आपको पता है जब आप सड़क पे जाते हैं तो हमेशा माइलस्टोन लगे होते हैं या डायरेक्शन आपको दी होती है। तो राह जो है यीशु राह है और उस राह में उसने जगह-जगह हमें बताया कि किस तरफ जाना है, किधर जाना है और वो हमें बताता रहता है। वो राह है और राह जो है वो जो निशान, वो जो इलामत है वो सलीब है इलामत। वो सलीब हम देख के तो उसके तो 4 सिमतें हैं उसकी, 4 तरफ। एक तो ज़मीन में गड़ी है और 3 सिमतें दाएँ-बाएँ और ऊपर। तो वो वही है। जब हम खुदा के 10 हुक्म देखते हैं, तो ये जो 10 हुक्म हैं, इनमें से जो पहले 3 हुक्म हैं, वो खुदा के बारे में। एक खुदा को मानना, उसी की बंदगी को सजदा करना, उसका नाम बेफ़ायदा न लेना और उसका दिन पाक रखना। ये वो वर्टिकल कॉलम है और इसकी आगे चल के बता देखें ये हुक्म है और फिर जो उसके हॉरिज़ॉन्टल कॉलम है, उसमें क्या है कि माँ-बाप से लेके बेगाने माल का आरज़ू करना, बेगाने माल का लालच करना। ये जो बाकी के 7 अहकाम हैं, वो तमाम के तमाम इंसानों के बारे में है। यानी हमारा गुनाह यही है अगर हम माँ-बाप से लेके अपने पड़ोसी, उन सब इंसानों के खिलाफ जो गुनाह करते हैं। अब जो खूबसूरत बात ये है जब यीशु कहता है मैं राह और हक और ज़िंदगी हूँ, तो वो ये कहता है कि देखो राह जो है उसने सलीब से हमें दिखाई कि ये राह है और सबसे बड़ा हुक्म जो है, तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से प्यार कर और अपने पड़ोसी को भी अपनी मानद प्यार कर। अब देखें ये जो वर्टिकल कॉलम है, खुदा को मानना, उसका नाम बेफ़ायदा ना लेना, उसका दिन पाक रखना, ये तो हुक्म बन गया है। लेकिन जब तक इसमें प्यार शामिल नहीं है, ये हुक्म बेकार हैं। तो खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अक्ल से प्यार कर। एक खुदा को मानना, उसी की ज़िंदगी, उसी को सजदा करना और उसका दिन पाक रखना, उसका नाम बेफ़ायदा ना लेना, क्या है ये? ये तो हम कह देते हैं और फिर भी कस्में और पता नहीं क्या-क्या करते हैं। ये उस वक़्त मुमकिन होगा कि जब खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, जान से प्यार करेंगे। उसके बाद जो बाकी 7 के 7 अहकामात हैं, वो इंसानों से मुंसलिक। जब भी मैं कोई चीज़ इंसानों के खिलाफ करता हूँ, मैं गुनाह करता हूँ। माँ-बाप से लेके और तमाम जितनी भी 7 और चीज़ें हैं जिनके बारे में ज़िक्र है। लेकिन वो चीज़ें उस वक़्त मुकम्मल होंगी जब मैं अपने पड़ोसी को अपनी मानद प्यार करूँगा और मेरा प्यार यही है कि मैं अपने पड़ोसी को अपनी मानद प्यार करूँ कि ये हुक्म जो हैं, मैं प्यार में इसीलिए तो यीशु कहता है कि मैं ये जो कानून है, मैं इसको ख़त्म करने नहीं आया, मैं तो इसको पूरा करने आया हूँ। ये पूरा तो उस वक़्त होगा जब इसमें मोहब्बत होगी। अगर मोहब्बत नहीं है तो ये तो लफ़ाज़ ही है, अल्फ़ाज़ हैं, हू केयर्स? उसमें जब तक मोहब्बत नहीं होती, उस वक़्त तक ये अहकामात सिर्फ़ एक लिखी हुई चीज़ हैं और कुछ नहीं। और बदकिस्मती से हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं, जो इन अल्फ़ाज़ को इतनी शिद्दत से अपने अंदर समा लेते हैं कि वो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। बहुत से और मज़ाहब में बहुत सी चीज़ें किसी को कुछ नहीं है। हम अपने अंदर झाँकें, अपने अंदर देखें कि इन अहकामात को मानने के लिए हम किस कदर खुदा को प्यार करते हैं और इंसानों को प्यार करते हैं और कब हम ये सलीब जो है, उसकी जो डायरेक्शन है, उसको मानते हैं। सलीब इलामत है कुर्बानी की। कुर्बानी क्या है? मोहब्बत है। क्योंकि आप किसी के लिए जब कुर्बानी देते तो इसलिए देते हो कि आपको उससे मोहब्बत है। माँ अपने बच्चे के लिए कुर्बान होती है क्योंकि उससे मोहब्बत करती है। ये मोहब्बत है जो कुर्बानी है। और जब तक ये मोहब्बत और ये कुर्बानी ये नहीं है, ये अहकामात हमारे लिए कुछ नहीं है। राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, जब वो ये कहता है, तो हमें बताता है कि भई राह ये है, अगर तुम ये करोगे,
यही करना सच है और जब ये तुम करोगे तो ज़िंदगी पाओगे। और इतनी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इतनी-सी बात है, ये बहुत बड़ी बात है और इसको करने के लिए हमें सारा अपने नए सिरे से अपने आप को सोचने की ज़रूरत है। मुझे ये जो 5 बाब हैं, ये बड़े पसंद हैं, इसलिए कि यीशु ने अपना सारा अपनी सोच जो है, वो सब उंडेल दी है और उसने प्यार को इस तरह बाहर निकाला है, इस तरह हमारे साथ शेयर किया है, इस तरह में बताया है, बार-बार कहा है, प्यार करो, क्योंकि वो जानता है कि प्यार नहीं होगा, तो हम खुदा के 10 हुक्म नहीं मानेंगे। हम सिर्फ़ वो रट लेंगे, हम उनको मानेंगे नहीं, हम उस पे अमल नहीं करेंगे। ये अमल सिर्फ़ मोहब्बत से आता है क्योंकि लफ़्ज़ मोहब्बत जो है ना, ये एक महज़ लफ़्ज़ नहीं है, ये अमल का नाम है। मोहब्बत अमल का नाम है, ये एक्शन है। अगर ये नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। यीशु का आज का जो ये पैगाम है, वो बड़ा मुख्तसर सा है, लेकिन यही है सब कुछ कि अगर हम इसको समझ लें और मोहब्बत के साथ अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के और अपनी दुआएँ और अपने अहकाम जो हम पढ़ते हैं, अगर उनको हम समझने लगें, तो वाक़ई हम सब कुछ जो कर रहे हैं वो मुकम्मल होगा और पूरा होगा। इसमें मैं बहुत कुछ और कह सकता हूँ, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इतना ही काफ़ी है। आमीन। बाप और बेटे और रुल कुद्स के नाम में। आमीन।